Hello everyone, hope you're doing good. I am Ashi Garg and welcome to the channel. In today's video, we are going to learn about Java. It's going to be an introductory video on Java. So for someone who wants to learn programming in Java or even data structures in Java, I think you found out the right spot. So let's begin. In this video, we are going to learn all the basic knowledge of programming along with how does Java code executes and the things about Java virtual machine, etc., JDK, etc. So we're going to learn about this. Let's begin. Okay, so these are the notes of Java. You can find them in the description box below. Let's read out the definition. एक एक करके हर एक terminology को समझेंगे and that's how we are going to start with the introduction. Okay. Let's read it out. Java is a high-level, object-oriented programming language used to build applications across platforms. It is known for its write once, run anywhere capability, meaning code written in Java can run on any device that supports the Java virtual machine. Okay. Now for the beginners, I know उतनी अच्छे से समझ नहीं आया होगा. It's not that understandable. इवन ऑन द इंटरनेट अगर आप देखोगे तो आपको यही ऐसी कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी. तो सबसे पहले हर एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझते हैं. The number one word that comes here is Java is a high level. Okay, so if you are aware of high level languages, low level languages, that's fine. You can skip this part, but okay, no worries. हम इसको अच्छे से समझते हैं. Let's come on to our screen. तो सबसे पहले हमें इतना पता है कि if we want our computer, our machine to execute some task, to do some work, definitely we have to provide some instructions, right? We provide instructions in form of code that our machine understands, right? हम कुछ कोड लिखते हैं, right? And somehow our machine or our computer understands that code. इतना हमें पता है, right? Now, that code can be of two types. One is high level and second is low level. Usually हमारा जो कोड है वो अपने आप सिस्टम नहीं समझता, क्योंकि if you remember, if you have learned this thing, our computer only understand binary language, binary code in the form of zeros and ones, right? Which is not human readable. ये humans नहीं read कर सकते. It is very complex to understand. But this is how computer works. कंप्यूटर को बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन कोड ही समझ में आता है. और मशीन कोड कैसे होता है? जीरोज एंड वंस के पैटर्न में, 0 0 1 1 1 0 0 1 समथिंग लाइक दैट, राइट? बट दिस इज नॉट ह्यूमन रीडेबल. दिस इज वेरी हार्ड फॉर अस टू कॉम्प्रिहेंड. हमें नहीं समझ आएगा. दैट इज़ वाई वी हैव बिल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. हमने तभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई है, हमने तभी कोडिंग लैंग्वेजेस बनाई है. क्यों? बिकॉज कोडिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा, C++, पाइथन, all of them are human readable. We can understand them, we can write code in them. हमें अगर कोई specific task implement करना है, right, हम उन coding languages में लिख सकते हैं. And there is a compiler or let us say interpreter. Sorry for my bad handwriting, but deal with it. There is this compiler और interpreter जो कि हमारी coding languages को machine code में translate करता है, बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं. दिस इज द रोल ऑफ कंपाइलर, दिस इज द रोल ऑफ इंटरप्रेटर, राइट? नाउ मैंने आपको बोला कि दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है, हाई लेवल एंड लो लेवल. अभी इसका मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? लेट अस से दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड, राइट? नाउ यू ओनली नो हिंदी or English, consider anyone, and your friend only knows French, right? Now you don't know French, your friend does not know Hindi, तो अभी आप communicate कैसे करोगे, right? It will be very difficult for you to understand each other. So one way is to use a translator. One simple way is to use translator. Translator will convert Hindi to French and French to Hindi, and that is how you'll be able to communicate with each other. Sounds simple, right? Although it will occupy some time, थोड़ा सा time taking process है, but yeah, it will work. You'll be able to understand what you both are trying to say to each other. You'll be able to communicate somehow, right? This is how high level languages are. All the languages that you've heard, such as Java, C++, Python, C, all of these
are high level languages because you need some compiler or interpreter to convert these languages to machine code. Computers cannot understand these languages directly, so you need some compiler, some interpreter, some sort of translator that can convert these languages into machine code, into binary code, so that a computer can understand. I hope you're clear about it. Okay. Low level languages, they are quite simpler. कैसे? देखो, low level languages are quite simple. This is you, this is your friend, and you both know Hindi, you both know English. आपको दोनों को languages आते हैं, तो आप easily translate, एक दूसरे से बात कर सकते हो, communicate कर सकते हो. आपको कोई translator की ज़रूरत नहीं है, right? So it's going to be a very rapid process. जैसे you're able to understand me through this video because I'm speaking in Hindi, I'm speaking in English, right? So इसके लिए हमें कोई translator की, हमें कोई compiler की, हमें ऐसे कोई interpreter की ज़रूरत नहीं पड़ी, right? I hope you know compiler and interpreter दोनों में difference क्या है. अगर नहीं पता तो भी it's fine, हम इस वीडियो में देख लेंगे. बट ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस का हमें समझ आ गया. हमें ऐसे कोई ट्रांसलेटर मतलब कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस इज असेंबली. अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो दीज आर लो लेवल लैंग्वेजेस. ऑल्दो असेंबली को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अलग से एक असेंबलर इंस्टॉल करना पड़ता है, बट ठीक है, विल नॉट गो इन डेप्थ. बट एक तरह से दीज आर हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ह्यूमन रीडेबल. वो हमने ह्यूमंस ने अपने ईज के लिए बनाई है, एंड वी नीड अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट that our code into machine code so that our computers can understand. And this high level languages are a bit time consuming because of the translation process. But low level languages में ऐसा कुछ नहीं है. तभी low level languages are hard to learn. They are tough, they are complex, but they have faster execution क्योंकि वो जो translation का time है वो बच जाता है. I hope you're clear about it. Okay. तो अब हम know the basics वाले section पे आते हैं. वहाँ पे हमें हाई लेवल और लो लेवल का सेक्शन मिलेगा. तो लेट्स रीड इट आउट वंस. मैंने वही लिखा है जो मैंने समझाया है. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे फॉर ह्यूमंस to give instructions to computer, but computers only understand binary in form of zeros and ones, so we need language that makes it easier for us to write instructions. ठीक है. अब देखो, मैंने हाई लेवल और लो लेवल का डिफरेंस यहाँ पे करा है. इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न इट, दैट्स फाइन. आपको बेसिक मतलब मुझे समझाना था, ताकि अगर आपको कोई भी हाई लेवल लो लेवल पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है. अब देखो, हाई लेवल लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं. इट इज़ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज दैट आर ईजियर टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड. लो लेवल, डिफिकल्ट सिंटैक्स, नॉट ह्यूमन रीडेबल. स्लोअर एग्जीक्यूशन, फास्टर एग्जीक्यूशन. ठीक है. अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, हाई एब्स्ट्रैक्शन, लो एब्स्ट्रैक्शन. अच्छा, इससे पहले जो फोर्थ पॉइंट है वो देख लो, वर्क अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. ठीक है. जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़, मैक, लिनक्स. ठीक है. बट जो लो लेवल लैंग्वेजेस है दे आर वेरी सिस्टम स्पेसिफिक, कि अगर आपने एक सिस्टम के लिए कोड लिख दिया तो वो सेम कोड दूसरे सिस्टम पे काम नहीं करेगा. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, हाई एब्स्ट्रैक्शन, लो एब्स्ट्रैक्शन. अभी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एंड इज इट रियली रिलेवेंट टू दिस कॉन्टेक्स्ट? आवर कॉन्टेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन टू जावा, बट व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्शन? देखो, एब्स्ट्रैक्शन है तो इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये जावा में आगे भी आएगा. देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा Java is a high level object oriented programming language. Let me tell you, abstraction is a very important part of object oriented programming language. अब ये object oriented है क्या इतना बड़ा, ये भी हम समझेंगे. बट एक बार मैं आपको abstraction समझा देती हूँ, फिर हम इसी टर्मिनोलॉजी पे आएंगे कि object oriented programming language है क्या. ठीक है. Let's come on to our screen. Abstraction का सिंपल सा मीनिंग है to only show the relevant data. That is it. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वही यूज़र को दिखाई जाए. बैकएंड पे जितना भी प्रोसेस है, जितना भी बैकएंड पर कोड है, जो उसकी वर्किंग है, वो अननेसेसरी पार्ट्स आप हाइड कर लो, अननेसेसरी डिटेल्स हाइड कर लो, एंड टू ओनली शो द रेलेवेंट डेटा. आई होप आई एम वेरी क्लियर. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई हैव दिस कार. नाउ एज अ ड्राइवर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कार के कुछ पार्ट्स, जैसे कि कार का स्टीयरिंग व्हील, कार के ब्रेक्स, क्लच, रेस एट्सेट्रा. आई डोंट केयर अबाउट द वर्किंग ऑफ इंजन और द सर्किट्स और चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं, कार के पार्ट्स कैसे कनेक्टेड है, अंदर की चीज़ें, मुझे उससे मतलब नहीं है. राइट. मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे बस आप इंपॉर्टेंट वर्किंग बता दो कि गाड़ी कैसे चलती है. मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है
और जो लो लेवल लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेज में हाई एब्स्ट्रैक्शन होता है। हाई एब्स्ट्रैक्शन का देखो मतलब सिंपल सा ये है कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना, उनमें सिर्फ वही डेटा होता है, वही डेटा शोकेस होता है जो यूज़र के लिए रेलिवेंट है। मतलब वेन एवर आई एम राइटिंग सम हाई लेवल लैंग्वेजेस, चाहे वो C++ है, जावा, आई डोंट केयर अबाउट हाउ इट इज़ वर्किंग इंटरनली। जो हमारा डेटा है वो मेमोरी में कैसे जा रहा है, वो रजिस्टर्स में कैसे जा रहा है, मेमोरी एलोकेट कैसे हो रही है, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। मैंने अपने लिए एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कोड बना दिया है, ठीक है, और मैं अब उसको लिख सकती हूँ और उससे अपने जो टास्क हैं वो कंप्लीट कर सकती हूँ। दैट इज़ इट। लो लेवल लैंग्वेजेस में लो एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। इसका मतलब कि आपको सारे पैरामीटर्स का ध्यान देना पड़ेगा कि बैकएंड में भी, जैसे अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर आपने उस वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट करी है, फिर वो जो डेटा है वो रजिस्टर्स में गया है, ये सब चीज़ें आप बैकएंड पे भी चेक करते हो। आप लो लेवल, तभी असेंबली या जो लो लेवल लैंग्वेजेस है, दे आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कोड लिखना होता है, अननेसेसरी चीज़ें बहुत सारी लिखनी होती है। वापस हमारे नोट्स पे आते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाई लेवल एंड लो लेवल। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी फॉर बिगिनर, जैसे कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, हमें इतना तो समझ आ गया कि हमारा जो जस्ट अ मिनट, हमें इतना तो समझ आ गया कि हमारा जो कोड है उसको बाइनरी या कह लो मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए होता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर, बट दोनों में फ़र्क कैसे होता है? देखो फ़र्क होता है कि वो कैसे कंपाइल या जैसे इंटरप्रेट करता है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि कंपाइलर है, नाउ व्हाट डज अ कंपाइलर डू? कंपाइलर पूरी फाइल को एक बार ही कंपाइल कर देता है। इन केस इफ देयर आर एनी एरर्स इट विल लिस्ट डाउन ऑल द एरर्स, और जब तक आपके एरर्स रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक वो आपको एक सर्टेन आउटपुट नहीं दे पाएगा। जैसे ये आपकी एक फ़ाइल है, इस फाइल का नाम है demo.java, आपने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको जो कंपाइलर है वो इस चीज़ को कंपाइल करेगा। जैसे आपने अगर कोई मिस्टेक्स कर रखी हैं, कोई सिंटैक्स एरर कर रखा है, ठीक है, तो वो लिस्ट डाउन कर देगा कि आपके एरर्स कौन कौन से हैं, एंड इफ देयर आर नो एरर्स देन इट विल कंपाइल एंड इट विल जनरेट द आउटपुट, सिंपल, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि ये आपकी फाइल है, ये आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड करेगा, ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन कर देगा। मतलब आपको इसका जो आउटपुट होगा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट करी होगी तो जावास्क्रिप्ट यूजेस इंटरप्रेटर, ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो स्क्रीन पे दिखा देगा, ठीक है, देन इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, it will read the next line, it will show its output, it will read the next line, it will show its output। अगर किसी भी लाइन में एरर है, जैसे मान लो इस लाइन में एरर आ गया, it will stop its execution then and there, और वो आपको एरर देगा, वो आपको बोलेगा पहले ये एरर रिजॉल्व करो और फिर मेरे पास वापस आओ। बट जबकि कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरी फाइल को कंपाइल कर देगा। पूरी फाइल में जितने भी एरर्स आएंगे वो आपको लिस्ट दे देगा एरर्स की कि ये इतने एरर्स हैं, ठीक है। वंस योर file, your program is successfully compiled, it will show its output, ठीक है। But interpreter interprets line by line, it shows their output then and there. In case if there is any error in some line, it will stop its execution there, और वहाँ पे वो error show करेगा and then you correct that error. I hope I'm clear about compiler and interpreter. एक बार notes में भी देख लेते हैं। Compiler translates the entire source code into machine code before execution, generating an executable file. Executable file आपने अगर जैसे कभी C++ पढ़ी है, .cpp जो उसकी एक्सटेंशन होती है C++ फाइल्स की, it gets converted into .exe फाइल, देखा होगा आपने ना। .exe फाइल ही executable फाइल होती है कि आपका जो कोड है .exe में जब वो कन्वर्ट हो रहा होता है ना, तो आपका जो कोड है वो मशीन कोड में ही कन्वर्ट हो रहा होता है। और ये जो मशीन कोड है, ये जो exe फाइल है, ये हम ह्यूमंस को नहीं समझ आती, ये सिर्फ कंप्यूटर्स को ही समझ आते। क्यों? क्योंकि इसमें मशीन कोड होता है। एंड इंटरप्रेटर ऑन द अदर हैंड ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग रन टाइम विदाउट प्रोड्यूसिंग। अब अच्छा, इसमें भी ये लिखा है कि जो आपकी इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्रेटर कभी भी कोई .exe फाइल जनरेट नहीं करता।
ठीक है, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब हम नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं, विच इज़ हाई लेवल हमने समझ लिया। अभी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हम इस चीज़ को भी देखते हैं। हम करने वाले हैं ऊप्स। ऊप्स मतलब वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये ऊप्स है क्या? देखो, ऊप्स को समझने से पहले ना कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। व्हाट हैपेंस इज, जब हम कोड डेवलप कर रहे थे तो हमने कोड लिखने का एक अलग से तरीके बनाए हैं, ठीक है, जैसे मॉडल्स बनाए हैं, अप्रोच बनाए हैं कि हम कोड को इस अप्रोच में लिखेंगे, इस मॉडल में लिखेंगे। तो हमने पैराडाइम्स क्रिएट किए हैं। जैसे अभी प्रोसीजरल, अभी नाम से क्लियर है कि आप प्रोसीजरल फॉर्मेट में कोड लिखते हो, प्रोसीजर्स को फॉलो करते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आप अपनी कोड की एग्जीक्यूशन करते हो। आई होप आई एम क्लियर। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आई गिव एन एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू कुक समथिंग एंड यू वांट टू नो द रेसिपी, यू गो टू योर मॉम, आप अपने मम्मा को बोलते हो या कुक को बोलते हो कि मुझे रेसिपी बताओ, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप कि पहले ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, राइट, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। एक तो है कि आप उस फॉर्म में अपना कोड को लिखो, अपने कोड की जो अप्रोच है वो प्रोसीजरल अप्रोच फॉलो करो कि आप स्टेप वाइज अपने कोड को फॉर्मेट करो, ठीक है। एक तो प्रोसीजरल अप्रोच हो जिसमें आप प्रोसीजर्स क्रिएट करते हो, रूटीन्स, फिर उनके अंदर सब रूटीन्स क्रिएट करते हो और फिर आप अपने कोड को इम्प्लीमेंट करते हो, राइट। ये चीज़ें हैं क्या? प्रोसीजरल, फंक्शनल, ऊप्स, ऑब्जेक्ट, ये दीज आर अप्रोचेस, दीज आर वेज, दीज आर मॉडल्स टू राइट कोड। कोड को एक फॉर्म देना कि कोड किस फॉर्म में लिखा गया है, प्रोसीजर्स में लिखा गया है या फंक्शंस। अब देखो फंक्शंस क्या होता है, आपने मैथ्स में फंक्शंस पढ़े होंगे, ठीक है। फंक्शंस में क्या होता है कि फंक्शंस को आप कोई इनपुट देते हो, ठीक है, और आप कोई आउटपुट, जैसे आपने लैम्डा फंक्शन या इनफैक्ट आपने रूट फंक्शन पढ़ा होगा कि ये एक फंक्शन है, आपने इसको कोई इनपुट दिया, फॉर इंस्टेंस 16 का रूट आपको 4 दे देगा, ठीक है। आप फंक्शंस बनाते हो, जैसे आपको मैक्सिमम एलिमेंट, जैसे आपको मैंने एक सीरीज दे दी 23, 42, 8 और 10, इसमें से आपको मैक्सिमम एलिमेंट फाउंड आउट करना है विच इज़ 42। तो आप एक कोड लिखते हो और कोड में फंक्शंस बनाते हो, फिर आप एक मैक्स नाम का फंक्शन मान लो आपने बनाया, उसके अंदर आपने अपना सारा कोड लिख दिया और ये मैक्स फंक्शन क्या करेगा, आपको मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा। सिमिलरली आपने मैथ में एक स्क्वायर फंक्शन किया हुआ कि आपको इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर फंक्शन आपको स्क्वायर करके आउटपुट दे देगा। तो एक फॉर्मेट है कि हम अपना जो कोड है फंक्शन वाइज लिखते हैं। आई होप आई एम क्लियर। दूसरा हमारा अप्रोच है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? देखो, ओरिएंटेड मतलब बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। देखो, हमने बनाया ही इसलिए है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस आई हैव दिस पेन इन माय हैंड, ये पेन एक तरह का ऑब्जेक्ट है। इस पेन की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होगी। फॉर इंस्टेंस ये पेन ब्लैक कलर का है, आई कैन राइट विद दिस पेन। सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे। अब हम स्पेसिफिकली ऊप्स की बात करते हैं। अब ऊप्स में हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, मैं फिर एक कार का एग्जांपल लेती हूँ। मेरी कार है, ये जो कार है ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है प्रॉपर्टीज़, दूसरी होती है फंक्शंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारी कार है, ठीक है, इस कार का कोई कलर होगा, इसकी कोई स्पीड या कह सकते हैं स्पीड लिमिट होगी, ठीक है। इसकी कोई कंपनी होगी कि किस कंपनी की कार है, उस कंपनी का फिर फर्दर कौन सा मॉडल है, ठीक है। इसकी डायमेंशंस क्या है, कार की डायमेंशंस भी तो होती है ना, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, इसका वेट क्या है, एंड सो मतलब ऐसे बहुत प्रॉपर्टीज हम कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली मैंने कार बनाई है, इसके फंक्शंस भी होंगे। एक क्या फंक्शन हो सकता है, इसका फंक्शन हो सकता है मूव, कि मेरे को मेरी गाड़ी मूव करवानी है लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है, मान लो मैंने गेयर नाम का एक फंक्शन करवा दिया कि मेरे को अब गेयर लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्सेट्रा, या रिवर्स गेयर। तो उस पर्टिकुलर गेयर में उस पर्टिकुलर तरीके से गाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक और फंक्शन बना दिया। मतलब कार की भी, जैसे मुझे कार ऑन एंड ऑफ करनी है, तो अगर मैं ऑन करूँगी तो मेरा जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, इसका मैंने अलग से फंक्शन क्रिएट कर दिया। समझ रहे हो? ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच,
कि मैंने ऑब्जेक्ट्स बना दिए, उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ है, उनकी कोई फंक्शंस है। अब ये जो मेरा कोड जो भी मैं लिखूंगी ना वो ओप्स के फॉर्म में लिखूंगी। मैं अपने कोड में ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी और फिर जो भी कोड है वो मैं करूंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अगर मुझे फॉर इंस्टेंस ट्रैफिक लाइट सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें मैं अपनी ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल कर सकूँ, तो मेरी ट्रैफिक लाइट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर रेड ग्रीन फर्दर लाइट्स हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अभी मेरे को कंट्रोल करना है कि कब रेड आई, कब ग्रीन आई, कब लाइट आई, ठीक, कब मतलब समझ जाओ कब रेड, कब येलो और कब ग्रीन जो लाइट्स हैं वो कब कब आई है, कितने इंटरवल्स पे आई है, कितने टाइम तक होल्ड रखना है मुझे उनको, ठीक है। तो मैं अलग अलग से फंक्शन बनाऊंगी। जैसे मैंने रेड नाम का एक फंक्शन बना दिया या रेड इंटरवल का ऐसे करके फंक्शन बना दिया, फिर मैंने उसमें कोड लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अभी मेरे को क्या प्रॉब्लम थी कि मेरे को अपनी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको प्रोग्राम करना कि मैं उनको एक स्पेसिफिक इंटरवल्स पर चला सकूं। तो मैंने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी अपने कोड को ऑब्जेक्ट्स का फॉर्म देके। बात समझ आ गई। यही काम हम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स में, कि हम अपने जो कोड है उसको एक फॉर्मेट दे देते हैं। फॉर्मेट कैसे, हम पहले बनाते हैं एक क्लास, ठीक है, उस क्लास के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं, उस क्लास के हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लास की प्रॉपर्टीज को और क्लास के मेथड्स को यूटिलाइज करते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्लास क्या है। देखो ऐसे करते हैं, जो मेरी क्लास है वो है मेरी ऑटोमोबाइल, या चलो एक काम करो व्हीकल के, ठीक है। व्हीकल कार भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, स्कूटी भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है। तो मेरी ऑब्जेक्ट हो गई कार, मेरी क्लास हो गई व्हीकल। क्लास एक तरह का कंटेनर होता है, एक तरह का बॉक्स होता है, ठीक है। जैसे व्हीकल एक तरह की कैटेगरी है, उस व्हीकल के अंदर और सब कैटेगरीज आ गई, कार, बाइक, स्कूटी, ट्रक, ठीक है, एक्सेट्रा। अभी मेरे व्हीकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज, मेरी व्हीकल का कोई वेट होगा, मेरी व्हीकल की कोई कंपनी होगी, ठीक है, मेरी व्हीकल की कोई स्पीड लिमिट होगी, मेरे व्हीकल का कोई इंजन टाइप होगा, मेरे व्हीकल्स के फंक्शंस भी होंगे। व्हीकल का तो क्या मूव करना, कौन सी डायरेक्शन में मूव करना, मूव नाम का फंक्शन होगा। व्हीकल्स में गियर होता है, गियर करके एक फंक्शन होगा, चलने का, रुकने का, रिवर्स डायरेक्शन में जाने का, अलग अलग से फंक्शंस बना सकती हूँ मैं। बना दिए मैंने, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस मैंने लिस्ट डाउन कर दिए। फिर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए जैसे कार, और कार जो है वो उन प्रॉपर्टीज और उन फंक्शंस को यूटिलाइज कर रहा है। और फिर मैं अब कार में भी अमेंडमेंट्स या चेंजेस कर सकती हूँ कि नहीं मेरी गाड़ी इसी स्पीड से चलेगी, मेरी गाड़ी में यही होगा, तो उसको चेंज करके मैं फिर अपने फर्दर कोड को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। आई होप आई एम अ बिट रिलेटेबल, मतलब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि मैं पता ही नहीं क्या बता रही हूँ, कि मतलब सब कुछ ऊपर से जा रहा है। आई होप आई एम अ बिट रिलेटेबल। जब हम पढ़ेंगे, आई एम अश्योरिंग यू, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बट हाँ, अभी इंट्रो के लिए ये इनफ है, लिटरली इनफ है। एंड ऊप्स इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत क्रूशियल है, बहुत अलग से इसके ऊपर टाइम डिवोट करना पड़ता है इसको समझने के लिए। इंट्रोडक्टरी में अगर आपको इतना भी एटलीस्ट रिलेटेबल लग गया कि हाँ ठीक है मुझे समझ आ रहा है, तो भी बहुत सही है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू आवर नोट्स। Java is a high-level object-oriented programming language used to build applications across platforms. हमें फर्स्ट लाइन समझ आ गई है। It is known for its write once, run anywhere. सेकेंड लाइन का मतलब समझने से पहले एक बार हम सेकेंड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि object-oriented programming is a way of writing code where you think of real-world things as objects that have data and actions. Data means properties और attributes, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, फील्ड्स भी बोलते हैं, एक्शंस को हम मेथड्स या फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा इन फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कोड इन फॉर्म ऑफ मेथड्स। आई होप आप बात समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं राइट वंस रन एनीवेयर कैपेबिलिटी। ये है क्या चीज़? देखो, इस चीज़ को समझने के लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ जावा कोड वर्क्स, ठीक है। जावा का कोड कंपाइल कैसे होता है? हमने बोल तो दिया कि कोड programming language, the high level code gets compiled into machine code, but how does that compile? हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझना शुरू करते हैं। हमने बोला कि कोड gets compiled
इनटू मशीन कोड, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाइलेशन है ये करी कैसे जाती है, ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। दिस इज आर, लेट अस कंसीडर दिस इज आर डेमो डॉट जावा फाइल, ओके, दिस इज योर जावा फाइल। नाउ व्हेन इट कंपाइल्स, होता क्या है कि जावा का अपना खुद का जावा सी कंपाइलर होता है। आई होप आपने सेटअप किया होगा। देखो, अगर नहीं किया ना तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टाइप ऑन इंटरनेट, मैं आपको दिखा देती हूँ। यू कैन टाइप ऑन इंटरनेट JDK डाउनलोड फॉर विंडोज़ और फॉर मैक OS। आप ओरेकल की वेबसाइट पे जाओगे और आप अपने OS के लिए, जैसे आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो अपने OS के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स में आप JDK कर सकते हो। कि JDK क्या है ये भी हम समझते हैं, बट जैसे अगर आपको जावा का कंपाइलर सेटअप करना है, सो फॉर दैट यू हैव टू इंस्टॉल JDK, ठीक है, ओके। तो जो जावा का कंपाइलर होता है उसे हम बोलते हैं जावा सी कंपाइलर। अभी जावा का कंपाइलर क्या करता है, सी सबसे पहले जो आपकी डॉट जावा फाइल है वो कन्वर्ट होती है डॉट क्लास फाइल में, एक और फाइल बनती है, और अब वो डेमो डॉट जावा नहीं होती, इट इज़ कॉल्ड एज डेमो डॉट क्लास। अभी डेमो डॉट क्लास क्या है, कभी सुना नहीं। दिस इज़ कॉल्ड एज बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, एक इंटरमीडिएट कोड होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। फर्दर दिस इंटरमीडिएट कोड, दिस बाइट कोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी मशीन कोड, और ये काम कौन करता है, JVM, विच इज जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। देखो, कोड हमारा कन्वर्ट होता है, हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें जावा का कोड है या कोई भी कोड है वो हमारा कन्वर्ट होगा मशीन कोड में। उसके बीच की जो स्टेज होती है उसको आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट स्टेज। नाउ जो इंटरमीडिएट स्टेज पे जो कोड आपको मिलता है उसको बोलते हैं हम बाइट कोड, और वो आपकी डॉट क्लास फाइल में स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद जो JVM है विच इज कॉल्ड एज जावा वर्चुअल मशीन, इट एग्जीक्यूट्स दैट बाइट कोड, इट एग्जीक्यूट्स दैट बाइट कोड इनटू मशीन कोड, और फिर वो हमारा जो मशीन कोड है वो हमारे सिस्टम पर रन होता है और हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू आवर नोट्स, और एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि हमारे नोट्स क्या कह रहे हैं। हाउ जावा कोड एग्जीक्यूट्स, देखो, यू राइट डॉट जावा फाइल यूजिंग टेक्स्ट एडिटर और IDE। IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आप जहाँ पर भी कोड करोगे वो एक IDE में करोगे, जैसे वो VS कोड हो सकता है, वो IntelliJ हो सकता है, ठीक है। यू कंपाइल द कोड यूजिंग जावा कंपाइलर जावा सी, ठीक है, विच क्रिएट्स डॉट क्लास फाइल। This file contains bytecode, an intermediate form of code that isn't specific to any one computer. अभी देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है isn't specific to any one computer, जिसका मतलब है कि आप डॉट क्लास फाइल किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हो। That is why Java is called as platform independent. A very important question which is asked in many interviews, or even if you are going to give university exams, वहाँ पे ये बात पूछी जाती है। मैं भी आपको बताती हूँ। Bytecode runs on JVM, which is Java Virtual Machine. The JVM reads the bytecode and converts it into machine code that your computer can understand and run. ठीक है, बात समझ आई है। अभी ये JVM क्या होता है, और अभी मैंने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला, हम इसका मतलब समझते हैं, बट अभी तक आप इस बात का ध्यान रखो कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का सीधा से क्या मतलब समझ आ रहा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है चलने के लिए, तभी हमने इसको राइट वंस रीड एनीवेयर कैपेबिलिटी बोला था, कि आप एक बार लिख दो और वो कहीं भी रन हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होता है, इट इज़ पॉसिबल थ्रू JVM। अब JVM क्या है, एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि आप JDK डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको जावा सी कंपाइलर मिलेगा। अभी JDK क्या है, ठीक है, और JVM हम कैसे हेल्प करते हैं जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, कि राइट वंस रन एनीवेयर कैपेबिलिटी वो कहीं भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नीचे चलते हैं, देखो सबसे पहले दिस इज आर JDK, ठीक है। दिस इज JRE,
ठीक है। दिस इज JVM, ठीक है। दिस इज JIT। अभी इतना कुछ क्या लिख दिया मैंने, डोंट वरी, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है। देखो, JDK स्टैंड्स फॉर, छोटा छोटा लिख देती हूँ, जावा डेवलपमेंट किट। JRE स्टैंड्स फॉर जावा रनटाइम environment. JVM stands for Java Virtual Machine. JIT stands for Just in Time Compiler. अब ये इतनी सारी चीज़ें है क्या, देखो, I'll present you with an analogy, ठीक है। उस एनालॉजी से हम आराम से समझते हैं। देखो, नाम से क्लियर है, जावा डेवलपमेंट किट। डेवलपमेंट किट मतलब जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि अभी एनालॉजी आपकी ये है कि आप JDK को एक तरह का किचन मान लो, किचन जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो आपकी कुक बुक या आप कह लो आपकी जो रेसिपी बुक होती है आपके पास, वो भी अवेलेबल है। मैंने आपको एक किचन पकड़ा दी, उस किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स है, सारे रिसोर्सेज हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, और उसके अलावा आपको मैंने कुक बुक पकड़ा दी, रेसिपी बुक पकड़ा दी, जिससे कि आप अपना जो फूड आइटम है जो आपको खाना है वो रेसिपी देख के, आप बेसिकली आपको एक मैनुअल पकड़ा दी, आपको मैनुअल देख के आप अपना खाना कुक कर सकते हो, राइट। JRE क्या है, JRE को भी आप किचन ही समझो, किचन और इंग्रेडिएंट्स, बस। इसमें आपको कोई मैनुअल, आपको कोई रेसिपी बुक, कोई कुक बुक नहीं होगी। आपके पास जो है आपको उसी से खाना बनाना पड़ेगा। आपके पास जो सामान है, आपको जितना आता है, जितनी नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना किचन में आप अपना खाना बनाओगे। बात क्लियर है। अब JVM कैन बी सेड एज द हार्ट ऑफ JDK, ठीक है। द हार्ट ऑफ JDK मतलब कि अब जैसे किचन है, अगर किचन में गैस स्टोव ही नहीं होगी या अवन ही नहीं होगा तो आपका खाना कैसे बनेगा। तो JVM को आप एक तरह से गैस स्टोव मान सकते हो या अवन मान सकते हो कि इवन इफ यू हैव किचन विद यू, बट इफ यू डोंट हैव प्रॉपर गैस स्टोव, यू वॉन्ट बी एबल टू कुक, राइट। तो इसीलिए हम JVM को हार्ट मानते हैं कि मतलब एक तरह से हार्ट ऑफ एंटायर JDK, कि जो करता है वो JVM ही करता है, और बाकी सब चीज़ें JVM को रन करने के लिए, जैसे रन टाइम एनवायरनमेंट, नाम से क्लियर लग रहा है, इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट टू रन द जावा प्रोग्राम्स, टू रन जावा एप्लीकेशंस, ठीक है। JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर इज लाइक अ शेफ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इट इज़ लाइक अ शेफ। फॉर इंस्टेंस, यू आर अ शेफ, यू वांट टू ईट समथिंग, यू कुक, ठीक है। एंड जैसे for example, if you like to eat a particular food item, you will cook it again and again. The more you cook, the faster you will cook, ठीक है। For instance, अगर आपने कोई food item first time बनाई, हो सकता है you'll take 1 hour to cook that item, but if you make it regularly, maybe you'll end up making in 45 minutes, in 30 minutes, in 20 minutes, right? तो JIT is used for optimization. It is used for faster execution of code. जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारे पास एक पूरा कोड है, उसमें एक सेक्शन ऑफ कोड है, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड है जो मल्टीपल टाइम्स लिखा गया है, इट इज रिपीटेड, rather than executing it again and again, again and again. Why not save it once and then use it again? समझे। जैसे कि हमारी कोड की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, और जो हमारा कोड है वो बाइनरी कोड में अगेन एंड अगेन कन्वर्ट होता है, उसको बार बार कन्वर्ट करने से अच्छा है उसी का मशीन कोड आप मेमोरी में सेव कर लो, एंड व्हेनेवर दैट कोड इज रिक्वायर्ड अगेन, उसको दोबारा से इंटरप्रेट मत करो, उसको आप उसका जो आपने मशीन कोड सेव किया है मेमोरी से, आप उसको वहीं से उठा लो और डायरेक्टली यूज़ कर लो। ये काम करता है JIT का, मतलब कि शेफ़ आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और अगर आपको ये चीज़ बनानी है तो आप इसको फास्टर कैसे कर सकते हो। बेसिकली it is used for optimization. It is used for optimization. ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये एनालॉजी तो मैंने आपको दे दी, बट JDK, JRE, JVM, JIT, एक बार सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा why Java is called as platform independent. Okay, let's dive deep into it. What is JDK? JDK stands for Java Development Kit. ठीक है। JDK को आप ऐसे भी लिख सकते हो, JDK इज इक्वल टू JRE प्लस जावा सी
कंपाइलर प्लस सम ऑफ द डेवलपर टूल्स, ठीक है, प्लस सम ऑफ द डेवलपर टूल्स। देखो अब आपको जो जावा सी कंपाइलर है, ठीक है, दैट इज़ फाउंड इन JDK। जैसे अगर आपने किसी से पूछा कि वेयर डू यू फाइंड जावा सी कंपाइलर, तो ना ये JRE में होता है ना ये JVM में होता है, ये होता है JDK में। JDK के मेन काम क्या है, वाई इज़ JDK यूज्ड, ठीक है, JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। अब देखो JDK इज़ यूज्ड टू राइट जावा प्रोग्राम्स, ठीक है, टू कंपाइल देम, टू डीबग देम, ठीक है। कंपाइल करने के लिए आपको कंपाइलर प्रोवाइडेड है, जावा सी कंपाइलर, ठीक है। आप अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हो, जो आपका कोड है उसको आप डीबग भी कर सकते हो, उसको आप कंपाइल भी कर सकते हो, और आपको एक मैनुअल भी प्रोवाइड होता है। याद है मैंने आपको कहा था किचन में आपको रेसिपी बुक या कुक बुक भी मिलती है, तो आपको मैनुअल भी एक प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। अब जैसे डेवलपर टूल्स में और क्या क्या चीज़ें हैं, JRE तो है ही आपके पास जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है। डेवलपर टूल्स में और क्या क्या मिलता है, जैसे कि आपको एक जावा टूल मिलता है विच इज़ JVM लॉन्चर। जैसे जब भी आपको JVM की रिक्वायरमेंट होती है तो JVM को लॉन्च करने के लिए यू हैव दिस जावा टूल, ठीक है। उसके बाद आपको जावा डॉक करके अपनी मैनुअल मिलती है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जहाँ पे आप सब कुछ रीड आउट कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंटेशन मिलती है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपको JDB मिलता है विच इज़ योर जावा डीबगर। JDB के थ्रू ही आप अपने जो जावा का कोड है उसको आप डीबग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको एक जार टूल मिलता है। अब ये जार टूल क्या करता है, आपने .jar फाइल्स देखी है आपके सिस्टम में, या कभी आपने देखी हो, .jar फाइल्स भी होती हैं। जार स्टैंड्स फॉर जावा आर्काइव, ठीक है। तो ये जो जार टूल है, इट मैनेजेस .jar फाइल्स, इट क्रिएट और इट अपडेट्स दोज .jar फाइल्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ डेवलपर टूल्स मिलते हैं, आपको एक कंपाइलर मिलता है और पूरा की पूरा रन टाइम इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। दिस इज़ द वर्क ऑफ JDK। तो एक तरह से आपको पूरी किचन सेटअप है, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे रिसोर्सेज, सारे इक्विपमेंट्स आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको एक रेसिपी बुक भी मिलती है इन केस यू वांट टू डेवलप योर ओन प्रोग्राम्स, राइट योर ओन प्रोग्राम्स। तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जो रूल्स है, जो कन्वेंशंस हैं, जो चीज़ें आपको प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, जो भी JDK की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, आप उसको रीड आउट कर सकते हो। डन, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि .java से .class तक का प्रोसेस कौन एग्जीक्यूट करता है, जावा सी कंपाइलर, और वो कहाँ होता है, वो होता है JDK में। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक बार हमारे नोट्स को पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। JDK stands for Java Development Kit. JDK is equal to JRE plus compiler, which is Java C plus some developer tools. JDK is used to write Java programs, compile them, debug them, and you have the document. And these are some of the tools that you have. How it works? You write a file. File का नाम कुछ भी हो सकता है. Let us consider demo.java. This file gets converted into .class file, which is bytecode. And जब now run the Java demo. JVM is launched and starts interpreting demo.class। का मतलब है कि जब once you get your .class file, JVM is launched। अब देखो .class से आगे तक का जितना सफ़र है वो JVM करेगा, ठीक है। जो हमारे एग्जीक्यूशन का फर्स्ट स्टेप है, देखो ये जो चीज़ है, जो फर्स्ट स्टेप है, ये हमारी JDK ने करके दे दी। अब .class से आगे जो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा वो हमारा JVM करेगा। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अभी JVM को लॉन्च करने के लिए JVM अलग से लॉन्चर हमें प्रोवाइडेड है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, उसमें वो लिखा हुआ है। तो कंपाइलेशन का प्रोसेस, डीबगिंग का प्रोसेस हमारा JDK में होता है, वहाँ पे हमें हमारा जावा सी कंपाइलर मिलता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। JRE इज इक्वल टू JVM प्लस सम ऑफ दी लाइब्रेरीज, ठीक है। JVM जावा वर्चुअल मशीन, और आपको कुछ लाइब्रेरीज भी प्रोवाइडेड होती है। एक बार फिर हमारे नोट्स देख लेते हैं। देखो JRE इज इक्वल टू JVM प्लस लाइब्रेरीज प्लस सम टूल्स, ठीक है। अब JRE का मेन काम क्या है, JRE इज रिक्वायर्ड टू रन जावा प्रोग्राम्स, इट इंक्लूड्स JVM, ठीक है, और कोर जावा क्लास लाइब्रेरीज लाइक दिस, ओके। देखो जो JVM है ना, JVM क्या करता है, JVM आपका जो बाइट कोड है, जो आपकी .class फाइल में
जो भी आपका बाइट कोड बना, JVM उसको फर्दर एग्जीक्यूट करता है एंड यू आर प्रोवाइडेड विद सम लाइब्रेरीज। अब जैसे कि जब आप जावा लिखोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे। आप ऐसे ही तो जावा नहीं लिखोगे। तो अगर आपने जावा का कोड कभी देखा होगा या कभी खुद से ट्राई किया होगा तो हम इसमें ऐसी चीज़ें लिखते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल। जावा डॉट यूटिल का एक लाइब्रेरी है, ठीक है। सिमिलरली हम लिखते हैं जावा डॉट लैंग जावा डॉट IO। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज है जो हमें मिलती है। हम इन्हीं लाइब्रेरीज का यूज़ करके अपना कोड लिखते हैं। ये एक तरह से रिक्वायरमेंट्स है, स्टार्टर्स हैं, जैसे स्टार्टर चीज़ें जिनको यूज़ करे बिना हम कोड लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए हैं वो इन्हीं लाइब्रेरीज में है। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, इफ़ यू हैव, तो जावा में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे लिस्ट, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है हैश मैप। जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है वो आपको जावा डॉट यूटिल में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग्स वगैरह पढ़े होंगे या आपने, तो जितनी भी क्लासेस हैं, अभी क्लासेस कुछ रियलाइज हो, क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, क्लासेस में कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड्स डिफाइन करते थे। तो इन जो लाइब्रेरीज हैं, ये जो लाइब्रेरीज है इनके अंदर हमने बहुत सारी क्लासेस बनाई हुई है। फिर उन क्लासेस की हमने सब क्लासेस बनाई हुई है, ठीक है। उन क्लासेस को यूज़ करके उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो क्लासेस हैं ये इन लाइब्रेरीज में मिलती है। सिमिलरली जावा डॉट IO में भी हमारे पास काफ़ी सारी अलग अलग क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये हमें JRE में मिलता है। तो JRE में एक तरह से वही हमारी किचन है और हमें सारे रिसोर्सेज वही हैं, इक्विपमेंट्स भी सब है। हमें आज कोई मैनुअल नहीं है, वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन, बट हमारे पास JVM है, हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरीज है, अलग अलग टूल्स हैं। दिस वाज ऑल अबाउट JRE, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। इट इज सेड टू बी एज द हार्ट ऑफ JDK, क्योंकि जो करता है यही काम करता है। डॉट क्लास फाइल को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, जो हमारा मशीन कोड है उसमें कन्वर्ट करना, वो हमारा JVM करता है। एक तरह से मैं लिख सकती हूँ एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड, ठीक है। ये हमारा JVM करता है, ठीक है। जो डॉट क्लास फाइल है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका क्या मतलब होता है कि आप ये जो डॉट क्लास फाइल है ना, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट जावा का कोड लिखा, मैंने कोई भी कोड लिख दिया यहाँ पे, उसको मैंने अपना कन्वर्ट कर दिया डॉट क्लास में। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा JDK, ठीक है। अब ये जो डॉट क्लास फाइल है इट कैन रन एनीवेयर। मैं आपको सिर्फ डॉट क्लास फाइल शेयर कर दूंगी, वो सेम डॉट क्लास फाइल विंडोज़ पे भी चलेगी, मैकओएस पे भी चलेगी, लिनक्स पे भी चलेगी। इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। द ओनली रिक्वायरमेंट, द ओनली नेसेसिटी इज यू शुड हैव JVM, जो कि उसको आगे फर्दर एग्जीक्यूट करे, उसके बाइट कोड को एग्जीक्यूट करे, बस, नथिंग एल्स, ठीक है। इसी चीज़ का मतलब होता है कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कि मुझे फॉर इंस्टेंस आई हैव हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स, मुझे हर एक मशीन पे जाके जावा का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने एक मशीन पे लिखा, दैट्स इनफ। उसके बाद जो उसकी डॉट क्लास फाइल मेरे पास आएगी, उसको कंपाइल करके आई कैन ट्रांसफर दैट फाइल इनटू n नंबर ऑफ सिस्टम्स और वो वहाँ पे इजीली रन हो जाएगा, ठीक है। उसमें मुझे अलग से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। आई जस्ट हैव टू शेयर दैट डॉट क्लास फाइल। द ओनली रिक्वायरमेंट, मुझे बस JVM मिलना चाहिए। आप मुझे JVM दे दो, आई प्रोवाइड JVM विद डॉट क्लास फाइल एंड JVM विल एग्जीक्यूटेड इन सिस्टम्स। बात समझ आ गई? जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे .cpp हो गई या C++, वगैरह, जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनमें क्या होता है, उनमें ना मैंने आपको पहले भी बताया था, .exe फाइल जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये जनरेट होकर आती है विच इज सिस्टम स्पेसिफिक। इट इज सिस्टम स्पेसिफिक। सिस्टम स्पेसिफिक मतलब इफ़ आई हैव विंडोज़ और मैंने अपना जो CPP का कोड है वो विंडोज़ पे कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद मेरे पास .exe फाइल आ गई। नाउ दिस विल नॉट रन ऑन मैकओएस, दिस विल नॉट रन ऑन एनी अदर सिस्टम। वाई? क्योंकि ये मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनी, मेरी सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे सिस्टम पे जो OS है, मेरी सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चीज़ कंपाइल हुई है, ठीक है। अगर आप सेम कोड CPP का मैकओएस में करोगे, उसकी exe फाइल तो जनरेट होगी बट उसका कोड डिफरेंट होगा।
राइट तो आप .exe फाइल्स को दूसरे सिस्टम्स पे रन नहीं कर सकते. दैट इज वाई दीज लैंग्वेजेस आर नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. अगर मेरे पास 100 मशीन्स है, देन आई हैव टू राइट CPP कोड इन ऑल ऑफ देम. दैट इज वाई दे आर नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टर्मिनोलॉजी. WORA, write once, run anywhere capability which is in Java. थोड़ा सा अगर और डेप्थ में जाना है तो JVM के पास होता है एक क्लास लोडर. नाम से क्लियर है, जो क्लासेस को लोड करता है. जैसे मेरे को कोई क्लास रिक्वायर्ड है, मैंने अभी आपको बताया कि मेरी लाइब्रेरीज में काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, तो उन क्लासेस को लोड करना. और फिर मेरे पास होता है JVM में एक बाइट कोड वेरीफायर. ठीक है, जो कि मेरे बाइट कोड को वेरीफाई करता है वेदर इट इज़ सेफ और नॉट, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. ठीक है, एक मेरे पास बाइट कोड वेरीफायर होता है. फिर जो मेरा JVM है, फिर वो क्या करता है, देन इट डज गार्बेज कलेक्शन. गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि जो भी ट्रैश है, गार्बेज है, उसको क्लीन करना. अभी प्रोग्रामिंग की टर्म्स में गार्बेज क्या होगा, देखो प्रोग्रामिंग की टर्म्स में गार्बेज क्या होता है, garbage is something which is not required, as simple as that, which is a trash, which is not in our use, right? तो प्रोग्रामिंग में बहुत बार होता है ना कि आपने कोई कोड लिखा, उस कोड में जैसे आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट ए समथिंग लाइक दैट. नाउ अभी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, और उसको मेमोरी में आपने एलोकेट कर दिया. ये आपकी मेमोरी है, आपने मेमोरी में अपना जो वेरिएबल है वो एलोकेट कर दिया. बट लेटर ऑन जब आपका कोड फिनिश हो गया, आपको अब इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक तरह से तो आपके लिए ट्रैश ही हुआ. तो JVM चेक्स, इज देयर समथिंग विच इज़ नॉट रेलिवेंट, इज देयर समथिंग विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड. तो JVM इस चीज़ को डी एलोकेट कर देता है, मेमोरी से हटा देता है. इट क्लीन्स अप ऑल द मेमोरी, सो दैट इज़ वाई इट डज गार्बेज कलेक्शन. आई होप ये बात भी समझ आ गई होगी. लेट्स कम टू आवर नोट्स. धीरे धीरे समझते हैं. JVM इज द हार्ट ऑफ जावा. What are its responsibilities? Load dot class files, ठीक है, verifies bytecode, allocates memory, run garbage collection, interpret bytecode और sends it to JIT for optimization. bytecode आपका interpret होता है और वो JIT, मैंने आपको just in time compiler बताया था JIT, उसको वो optimization के लिए भेज देता है. ठीक है, what is the execution process? We have this class loader. It loads the dot class file into the memory. Then bytecode verifier, it ensures that bytecode is safe. Runtime data areas, okay, runtime data areas as in कि आपको अपना जो डेटा है वो कहाँ स्टोर करना है, वो हीप में स्टोर करना है, वो स्टैक में स्टोर करना है, वो रजिस्टर में स्टोर करना है. ठीक है, देन एग्जीक्यूशन इंजन, योर बाइट कोड इज इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन एंड इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड बाय JIT. लास्ट JIT भी समझ लेते हैं. मैंने आपको क्या कहा था, JIT क्या है, एक तरह का शेफ है. ये आपका पूरा की पूरा बाइट कोड है. ठीक है, ये आपका लाइन नंबर 1 से शुरू होता है, लाइन नंबर लेटर से 50 पे एंड हो जाता है. ठीक है, तो जो JIT है, इट विल रीड योर कोड लाइन बाय लाइन, इट विल इंटरप्रेट योर कोड लाइन बाय लाइन. ठीक है, इट विल एग्जीक्यूट इट. एंड मैंने आपको कहा कि अगर लेटर से ये वाला पोर्शन कोड का बार बार आ रहा है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ठीक है, फर्दर नीचे भी आया, इफ़ अ पार्ट ऑफ कोड इज़ यूज फ्रीक्वेंटली, then rather than converting it again and again, rather than converting it from bytecode to machine code again and again, which is a time taking process, what do? You save its machine code into memory. You save its machine code in memory, so whenever it is used next time, you directly fetch the machine code from memory rather than converting it from bytecode to machine code again and again. convert करना time taking process है, hence हम उसको memory से fetch कर लेते हैं. that is why JIT is used for optimization. that is it, खत्म. ठीक है, the JIT compiler improves performance by converting bytecode into native machine code at runtime. How JIT works? JVM starts interpreting bytecode line by line. ठीक है, JVM notices some methods or loops are being used frequently, called hotspots. JIT compiles these hotspots to machine code. ठीक है, next time the method runs, the machine code is reused, which is a much faster process. I hope
यू आर क्लियर विद इट. इसका एक एग्जांपल है, जैसे हम लूप्स चलाते हैं. अगर आपने प्रोग्रामिंग में लूप्स पढ़ोगे, जैसे फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, ठीक है. तो इसमें आप क्या करते हो, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 50, i प्लस प्लस, ठीक है, एस आउट, हेलो. ये है क्या, मैंने क्या लिख दिया, देखो ये लूप का क्या मतलब होता है, जो चीज़ बार 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 लूप में चले, रिपीटेडली चले. तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में लूप्स होते हैं. एक ये होता है हमारे पास फॉर लूप. इस लाइन का क्या मतलब है, एस आउट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ. इस लाइन से क्या होगा, आपकी जो स्क्रीन है उस पर बार बार हेलो प्रिंट हो जाएगा. कब तक, i इक्वल टू 0. जब तक i जो है, i की वैल्यू 50 नहीं हो जाती, तब तक आपका हेलो बार बार स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. इसका मतलब आपका जो हेलो है वो 50 टाइम्स स्क्रीन पे प्रिंट होगा. और जब i की वैल्यू 50 हो जाएगी तब मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा और तब स्क्रीन पर हेलो प्रिंट होना बंद हो जाएगा. तो भी इसमें आप देख लो लूप चल रहा है, एक ही कोड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 50 टाइम्स. वो भी अगर इतनी बार हम ऐसे ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन करने लगेंगे बाइट कोड टू मशीन कोड के, इट्स गोइंग टू ऑक्यूपाई लॉट ऑफ टाइम. हेंस हम JIT का यूज़ करते हैं, मतलब JIT जो है इसको ऑप्टिमाइज़ कर देता है, ठीक है. एक बार इस समरी को भी देख लेते हैं. ये समरी क्या कह रही है, मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. बेसिकली समरी में मैंने ये लिखा है कि कैन JDK कंपाइल जावा कोड, यस. कैन JRE, JVM, JIT, कैन दे डू दैट, नो. Why? Because Java-C compiler is present in JDK and not in other parts. JRE, JVM, JIT में नहीं होता. Can JDK run? Yes, 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 yes. रन तो हो ही सकता है आपका प्रोग्राम, ठीक है. नेक्स्ट, आर दे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बिल्कुल, ठीक है. तो वो मैंने एक छोटी सी समरी यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना. दिस इज़ ऑल अबाउट इट. सो एक तरह से दिस वॉज ऑल अबाउट आर इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ जावा. मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विच वॉज नेसेसरी टू एक्सप्लेन टू अ बिगिनर in the first video, in the first lecture. Read these notes out and these notes may not be enough क्योंकि एक तरीके से काफ़ी short notes हैं. तो I'll suggest you to read entire theory. इसकी proper इंटरनेट पे जाके आप theory पढ़ो ताकि आपको deeper understanding आ जाए. So this was all about it. This was all about the lecture. I hope आपको पसंद आया होगा. Okay, let's meet in the next video. Till then, bye bye.